آپ سب کو پیار بڑا سلام. خاندان میں نے اس لیے نہیں کہا، میں خدا کے مذبح پر کھڑا ہوں. میں نے جو بڑا دن ابھی جو گزرا ہے اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ میرا خاندان آپ ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ میری رشتہ داری اور میرا خاندان آپ ہیں، اور یہ یسوع مسیح کی تعلیم ہے. جب یسوع مسیح گم ہو گیا تھا تو ماں باپ بہن بھائی ڈھونڈ رہے تھے نا، تو یسوع نے کیا کہا؟ میری بہنیں، میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار، میرے بھائی، میری بہنیں یہ ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو میری رشتہ داری تو بھائی آپ کے ساتھ ہے، میری خوشی غم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. پریز دی لارڈ. تو خدا آپ سب کو برکت دے. تو آج سے 8 دن پہلے ہم نے بڑا دن منایا ہے بڑی خوشی کے ساتھ یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے. اور آج یسوع مسیح کو جب پیدا ہوئے 8 دن ہو گئے تھے، تو اس کے بعد یسوع مسیح کو اس کے ماں باپ یروشلم میں لے گئے. یروشلم میں کیوں لے گئے؟ کیونکہ وہاں پر ایک ہی ہیکل تھی یروشلم میں جو سلیمانی ہیکل کہلاتی تھی، اور وہاں پر لوگ جو ہیں ناصرت سے یروشلم میں ہیکل میں عبادت کرنے کے لیے یا نام لکھوانے کے لیے، آپ اناجیل کا مطالعہ کر سکتے ہیں، میں نے کیا ہے. وہاں پر اس میں نویسی کے لیے، مردم شماری کے لیے، نام لکھوانے کے لیے وہاں سمجھ لیں یہ ہیڈ آفس تھا، سینٹر تھا، جہاں پر وہاں پر وہ لوگ جاتے مخصوص کروانا ہو، ختنہ کروانا ہو یا نام لکھوانا ہو تو ان کو اسپیشل یروشلم میں جانا پڑتا تھا، ہیکل میں ان کو جانا پڑتا تھا. آئیے میرے ساتھ اس آیت کو پڑھ لیجئے. لوکا کی انجیل اس کا 2 باب ہے اور اس کی 21ویں آیت ہم پڑھیں گے. لکھا ہے جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے پیٹ میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا. کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. یہ نام کس نے دیا تھا؟ فرشتہ نے دیا تھا. ہاللیلویا. کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. چونکہ یہ نام فرشتے کے وسیلے سے پہنچا تھا اور آسمان سے یہ نام خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے لیے یہ نام دیا تھا. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ باپ وہ نام جو تو نے مجھے دیا، یعنی وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ وہی خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس نام کو لکھوانے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں جب بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتے ہیں تو ہم اس کا نام لکھوانے کے لیے ہم چوکیدار کے پاس جاتے ہیں یا ہم یونین کونسل میں جاتے ہیں. ہمیں تو موج ہے چونکہ ہماری یونین کونسل جو ہے وہ گاؤں میں آ چکی ہے 34 قامت کی بیٹھک میں. اب تو ہمیں ہر کاغذ وہاں سے مل سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کو دور جانا پڑتا تھا نام لکھوانے کے لیے. غور سے ذرا کلام کو سنیے گا. جسمانی طور پر ان کو نام لکھوانے کے لیے یونین کونسل میں یروشلم میں ان کو جانا پڑتا تھا. نام لکھوانا کیوں ضرور ہے؟ اس لیے چونکہ بعد میں شناختی کارڈ بننے میں پرابلم ہوتی ہے، اور اگر شناختی کارڈ نہ ہو بندہ باہر کے ملک میں نہیں جا سکتا. بہت سارے پرابلم کھڑے ہو جاتے ہیں. کرونا ویکسین نہیں لگ سکتی، کرونا ویکسین کے کارڈ نہیں بن سکتے، اور بھی بہت ساری پرابلمز آپ کے لیے کریٹ ہو سکتی ہیں، پیدا ہو سکتی ہیں. اس لیے نام لکھوانا انتہائی ضروری ہے. اور اسی طرح نئے عہد نامے کے مطابق بائبل کہتی ہے جس کسی شخص کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا اسے آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. یہی دوسری موت ہے. ہمیں جسمانی نام کی بڑی فکر ہوتی ہے. جسمانی نام ٹھیک ٹھیک لکھنا. چوکیدار صاحب، پاسٹر صاحب، جب ہم اپنے بچوں کو ہیکل میں لے کر آئیں تو ہمیں ٹھیک ٹھیک سرٹیفکیٹ بنا کر دینا تاکہ کل اسکول میں داخل کرانے کے لیے یا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو. یا جب کوئی نکاح کرواتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے پاسٹر صاحب ہمارے شناختی کارڈ لیں تاکہ اس کے حساب سے ڈیٹ آف برتھ جو ہے اس پر ڈال سکیں، آپ تحریر کر سکیں تاکہ کل کو کوئی مسئلہ یا کوئی پرابلم نہ ہو.
रहते हुए इन सारी चीजों के लिए बड़े परेशान होते हैं और बड़े एक्टिव होते हैं, बड़े होशियार होते हैं। लेकिन आज मैं दो पहलू बताऊंगा, एक जिस्मानी पहलू है, एक जमीनी पहलू है और एक आसमानी पहलू है। पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पुराने अहदनामे में 8वें दिन खतना किया जाता था, जो कि इंतहाई जरूरी था। जो कोई खतना नहीं करवाता था उसको मखतून ईमानदार नहीं गिना जाता था। यह शर्त होती थी यहूदियत में, शरीयत में शामिल होने के लिए। यह जरूरी शर्त होती थी कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता उसका खतना करवाया जाता, उसका नाम लिखवाया जाता। यह बहुत बड़ी शर्त थी यहूदियत में या इस्राएल में शामिल होने के लिए, शरीयत को पूरा करने के लिए। लेकिन आप गलतियों का खाक अपने घर में जाकर पढ़िएगा, चूंकि यहां पर इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी बातें सुना सकूं। वहां पर लिखा है अब जो खतना करवाता है वो मसीह से जुदा है। गौर जरा कीजिएगा, मैं सिर्फ एक ही बोल रहा हूं। अब जो कोई शख्स खतना करवाता है वो मसीह से जुदा है, क्योंकि मसीह ने शरीयत को पूरा कर दिया है। अब खतने की जगह बपतिस्मे ने ले ली है। किसने ली है जी? खतने की जगह किसने ले ली है? बच्चे का नहीं, गौर से सुनिएगा, बच्चे का नहीं। बच्चे का सर्टिफिकेट लेने के लिए आपने, जैसे इसको हैकल में ले जाया गया, इसी तरह सर्टिफिकेट लेने के लिए आपने बच्चों को हैकल में लेकर आना है, ताकि आपका बच्चा जो है उसको मखसूस किया जाए, उसको बरकत दी जाए। क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। और कलाम कहता है वो उन पर हाथ रखकर उनको बरकत देकर चला गया। उनको बरकत देकर वो गया है, बपतिस्मा नहीं दिया जी। पूरी बाइबल में बच्चे को बपतिस्मा नहीं दिया गया, ना ही दिलवाया गया है। अगर है किसी के पास हवाला तो मेरे पास आ जाए। जितने लोग मुझे नेट पर देख रहे हैं वो भी मुझे बता सकते हैं बाइबल को पढ़कर, क्योंकि मुझे 25 साल हो गए बाइबल को पढ़ते हुए और सुनाते हुए, और मैं जो बात कहता हूं वो पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। कोई उस बात को रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, कोई हटदर्मी करे तो ये और बात है, कोई ना माने तो ना माने, लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चे की मखसूसियत है। लेकिन बपतिस्मा बच्चे का नहीं है, ना कहीं दिलवाया गया है, ना कहीं बच्चे को दिया गया है, बल्कि बपतिस्मा लिया गया है। हालेलुया। आप बाइबल का मुताला करें, आप मत्ती की इंजील 30 बाब को पढ़ें। लिखा है यरूशलेम और गिरदोनवा के तमाम लोग निकलकर यूहन्ना के पास गए। बच्चे नहीं, लोग निकलकर गए हैं और उन्होंने जाकर अपने अपने गुनाहों का इकरार किया। आप मुझे ये बताएं कि क्या बच्चा 1.25 महीने का या 8 दिन का बच्चा इकरार करता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है? जबकि निजात पाने के लिए तो उसका नाम यीशु रखना वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। निजात पाने के लिए रोमियो 10:9 में लिखा है कि ईमान दिल से लाया जाता है और इकरार मुंह से किया जाता है। जैसे हबशी खोजा ने जो इबादत भी करता था, बाइबल भी पढ़ता था, हैकल में स्पेशल यरूशलेम में जाता था, लेकिन जब वापस आ रहा था लिखा खुदा के रूह ने फिलिप्पस से कहा, हबशी खोजा के साथ बोले, वो उसके साथ बोल लिया, उसको यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते हुए देखा और सुना और कहा जो तू पढ़ता है इसको समझता भी है। वो कहने लगा मैं क्यों कर समझ सकता हूं जब तक कोई उस्ताद मेरी रहनुमाई हदायत करने वाला ना हो। तो फिर हदायत की ना फिलिप्पस मुबश्शिर ने, लिखा है उसी निविष्ठा से शुरू किया और उसे यीशु की पूरी खुशखबरी सुनाई। कितनी सुनाई? पूरी खुशखबरी। आज बाइबल तो सबके पास है, यही धोखा है, यही फ्रॉड है। कल भी मेरी किसी के साथ बात हो रही थी, यही धोखा है। हम कहते हैं सबके पास बाइबल है, सब ही ठीक है। अगर सब ठीक हो जाए ना, आज ही यीशु में आ जाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर सब ही ठीक हो जाए, दुल्हन ही तैयार हो जाए और सारे लोग ठीक तालीम देना शुरू कर दे तो आज ही यीशु आ जाए। यीशु क्यों ठहरा हुआ है? नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो तालीम देने वाले तालीम ठीक दे रहे हैं और ना ही कलीसिया अभी तक पूरे तौर पर तैयार हुई है। और कलाम क्या कहता है? सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुम्हें साथ करेंगे। सो उसने पूरी खुशखबरी सुनाई दी, और जब पूरी खुशखबरी सुनाई तो लिखा राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। पानी की जगह पर, पानी घर में नहीं ले आए, एक गिलास में या छन्ने में नहीं पानी ले आए, या थोड़ा सा पानी डाल नहीं दिया, पानी की जगह पर पहुंचे और खोजा ने कहा देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकती है? उसने कहा अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने कहा मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। उसने रात को खड़ा करने का
का हुक्म दिया और हबशी खोजा फिलिप्पस मुबशर दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको पानी का बपतिस्मा दिया के दिलवाया? फिलिप्पस ने दिया और उसने लिया। आपको जहां भी आप बाइबल का मुताला करेंगे आपको यही मिलेगा कि लोगों ने बपतिस्मा लिया। अमाल की किताब का जरूर मुताला कीजिएगा, वहां पर भी आपको मिलेगा कि 3000 आदमियों ने बपतिस्मा लिया, मर्दों ने बपतिस्मा लिया, औरतों ने बपतिस्मा लिया। कहीं भी पुराने और नए नामे में यह नहीं लिखा कि बच्चों ने बपतिस्मा लिया या बच्चों को बपतिस्मा दिलवाया गया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब बच्चा पैदा होता है जिस्मानी तौर पर तो फिर उसका नाम हम गवर्नमेंट के कागजात में लिखवाते हैं, यूनियन काउंसिल में। हमें टेंशन होती है, हमें परेशानी होती है, लेकिन क्या कभी हमने ये टेंशन भी ली है कि क्या हमारा नाम किताब याद में लिखा हुआ है कि नहीं? कल मेरी किसी से मुलाकात हुई, कहने लगी कि हमारे रजिस्टर में वहां पर नाम लिखे हुए। मैं कहा जरा मैं तो नाम लिखवाया उत्ते वाले रजिस्टर से, उत्ते फरिश्तियां ने लिखा कोई हटा नहीं सकता। इधर रजिस्टर हटाया जा सकता, जलाया जा सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा वहां पर फरिश्ते नाम पढ़ेंगे। पास्टर मुश्ताक ने फलां भाई का फलां बहन का नाम लिखवाया, फलां वक्त डेट वहां पर लिखी होगी। आमीन। और वहां पर कौन सी किताबें खोली जाएगी? किताबें याद भी। और हर एक शख्स की अपनी अपनी किताब अमाल के मुताबिक इंसाफ होने वाला है, अदालत होने वाली है। इसलिए फरिश्ते वहां पर हर गुनाह हर खता हमारी वहां पर लिख लेते हैं, इसलिए वहां पर किताबें खुलने वाली हैं। ये वाले रजिस्टर जो जमीन पर बहुत सारे लोगों ने तैयार करके लोगों को क्या किया हुआ है, ये वाले रजिस्टर आसमान पर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां पर तो लिखा कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। पुरानी जमीन पुराना आसमान सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ नया होने वाला है। और उसी ने कहा है मैं सब कुछ नया बना दूंगा। आज चूंकि नया साल है इसलिए सब कुछ नया, हमें अपने आप को नया करने की जरूरत है, नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। और ये कलाम की तालीम है। अगर हम यूहन्ना की इंजील को पढ़ें तो 30 बाब लिखा है कि एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का सरदार रात को यीशु के पास आया और कहने लगा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि जो मुझसे तू करता है कोई शख्स नहीं कर सकता जब तक वो खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। तो कहने लगा कि खुदावंद मैं तेरे पास आया हूं रात के टाइम ताकि कोई मुझे देख ना ले। छुपता छुपता आया ना, चोरी चोरी आया। लेकिन यीशु ने कहा, ए निकोदेमुस, तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। पहले तो जिस्मानी तौर पर पैदा हुआ है, पहले तो मां से पैदा हुआ है। और कलाम में क्या लिखा है? इंसान जो औरत से पैदा होता है वो थोड़े दिनों का है, पर जो रूह से पैदा होता है वो थोड़े दिनों का नहीं है। जमीन पर वो थोड़े दिनों का है, लेकिन आसमान पर थोड़े दिनों का नहीं है, बल्कि ना खत्म होने वाली जिंदगी उसके पास है। हालेलुया। जो नए सिर से पैदा होता है, जो जिस्म से पैदा होता है, वो जिस्मानी है, वो फानी है, वो मर जाएगा। आदम तो खाक है, फिर खाक में लौट जाएगा। लेकिन जो नए सिर से पैदा होता है, इसी को लिखा है कि जो जिंदा है और उस पर ईमान लाते हैं वो कभी ना मरेंगे। बड़े कुछ लोग लकी होंगे जब यीशु आएगा, तो कुछ लोग जिंदा भी होंगे, कुछ लोग मर चुके होंगे, लेकिन कुछ लोग जिंदा होंगे जिन पर मौत नहीं आएगी, और वो लकी होंगे कि नहीं? उन पर मौत ही नहीं आएगी। हालेलुया। तो इसलिए निकोदेमुस से कहा, तुझे नए सिर से पैदा होना जरूर है। जब तक कोई शख्स पानी और रूह से पैदा ना हो, आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो उसने कहा, इंसान जब एक दफा पैदा हो गया तो वो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो अपनी मां के पेट में दोबारा दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने कहा, नहीं, जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्मानी है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूहानी है। तज्जब न कर, हैरान ना हो, परेशान ना हो कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिर से पैदा होना जरूर है। तो इसका मतलब है कि नई पैदाइश के लिए हमें पानी से, खुदा का कलाम भी पानी है। सामने औरत से यीशु ने कहा, काश कि तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे ऐसा पानी देता जो तेरे अंदर से चश्मा बन जाता। कलाम भी पानी है। और खुदा के खातम जो हैं उनको बादल कहा गया है। लिखा है मैं बादलों को हुक्म दूंगा कि वो मीना बरसाएं। खातम जब आते हैं, बादल एक छोटा सा आया था एलिया के दौर में, एलीशा के दौर में, छोटे से बादल ने पानी पानी कर दिया था। खातम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अगर उसके साथ खुदा है, खुदा का बेटा यीशु है, और उसके अंदर खुदा का पाक है, तो वो पानी पानी कर देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए कलाम भी पानी है और पानी का जिक्र भी है कि तुझे पानी और रूह से पैदा होना। याद रखिए, अंदर से भी हमें पैदा होना है, अंदर से खुदा का कलाम हमें पैदा करता है।
जब हम कलाम को सुनते हैं मुशरफ बेटे की तरह या उस डाकू की तरह, ठीक है, जिसने इकरार किया तौबा की, या ज़कई की तरह जिसने इकरार किया, और यीशु ने कहा आज इस घर में अंदर से उसने तौबा की, डाकू ने भी अंदर से तौबा की। और पानी का ये खुदा का कलाम जो पानी है इसको कबूल किया, ठीक है, लेकिन फिर भी पानी का बपतिस्मा जरूरी है ज़ाहिरी निजासत को धोने के लिए, क्योंकि ये यीशु का हुक्म है कि तुम जाओ और सारी खलक के सामने जाकर अंजीर की मुनादी करो। किसकी मुनादी? डिनोमिनेशनों की नहीं, अंजीर की मुनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। किसके अल्फाज हैं? क्यों भाई अल्फाज किसके हैं? यीशु के कि मेरे? कि यीशु की गल बननी चाहिए कि नहीं? बहुत सारे मेरे भाई ने हम खिदमत करते हैं जी बपतिस्मे च किहड़ी निजात है। ਇਹਦਾ मतलब है कि वो सच्चे ने तो यीशु ना पर झूठा कहने हैं। समझ आ रही? यीशु कह रहा है जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। हम कह रहे हैं जी बपतिस्मे में कौन सी निजात? इसका मतलब है हम यीशु की बात को रिजेक्ट कर रहे हैं, हम यीशु की बात को नेगेटिव उसकी नफी कर रहे हैं, हम उसको मान नहीं रहे। इसलिए कलाम में लिखा है कि तुझे नए सिर से पैदा होना जरूर है। जैसे मुस्तफा बेगा वापस आया और उसने इकरार किया, तौबा की, और बाप ने उसको दोबारा वही रुतबा, वही इज्जत, वही मकाम दिया। इसी तरह जब कोई गुनहगार शख्स तौबा करता है, मसीह के पास आता है, इकरार करता है, ईमान लाता है, सच्चे दिल से इकरार करता है और तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, तो वो नए सिर से पैदा हो जाता है। अब सवाल यह है कि नई पैदाइश क्यों जरूरी है? क्योंकि कलाम में लिखा है सब ने गुनाह किया, बोले बोले सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। अगर हम नए सिर से पैदा नहीं होते तो फिर इंसान जो औरत से पैदा होता है वो थोड़े दिनों का है, और अगर हम नए सिर से पैदा होते हैं तो फिर हम थोड़े दिनों के नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी हमारे पास है। और याद रखिए जो 2 दफा पैदा होता है उस पर एक मौत आएगी। ये बड़ी गहरी बात है, जनाब मैं आराम से सुनाता हूं। जो बंदा 2 दफा पैदा होता है उस पर एक मौत आएगी। ध्यान से सुनिएगा, मैंने पिछले साल नए साल के मौका पर यहाँ पर कलाम सुनाया था, 15 लोग खड़े हुए थे। मैंने कहा तौबा करें, बपतिस्मा ले लें। उनमें से एक 15 दिन के बाद खुदा के पास पहुंच गया। मुझे बड़ा सदमा हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि उसने बपतिस्मा क्यों नहीं लिया। इसी तरह मुझे अब भी दुख होता है कि अगर कोई तौबा करने के बगैर कोई शख्स मर जाता है तो फिर मुझे बड़ा दुख होता है। उतना उसके मरने पर दुख नहीं होता जितना इस बात पर दुख होता है कि फलां शख्स ने तौबा नहीं की और निजात नहीं पाई। इसलिए जो 2 दफा पैदा होता है उस पर कितनी मौत है? एक। और जो 1 दफा पैदा होता है उस पर 2 अमवात। अमवात मौत की जमा है, यानी अबदी मौत भी उस पर है कि जो 1 दफा पैदा होता है, लेकिन जो 2 दफा पैदा होता है उस पर सिर्फ एक ही मौत है, यानी जिस्मानी मौत, जो सब पर, नबियों पर, पैगंबरों पर, रसूलों पर, आम लोगों पर, गुनहगारों पर, रास्तबाजों पर, सब पर आई है और हम पर भी आएगी। और इस मौत के तल्लुक से खुदा का बंदा पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए। लेकिन जो 2 दफा पैदा होगा उस पर सिर्फ एक मौत है, और जो 1 दफा पैदा होगा उस पर 2 अमवात है। यानी गुनहगारों की हड्डियों का धुआं सदा उठता रहेगा, उनका पीड़ा कभी खत्म। तो इस नए साल के मौका पर आज खुदा ने एक नया साल दिया है। आज का दिन शुक्रगुजारी का दिन भी है गुजरे साल के लिए और आज के दिन के लिए कि खुदा ने एक नया साल दिया है। दाऊद कहता है कब्र में जाकर कौन तेरी सताइश करेगा। अब देखिए बहुत से लोग इस साल में कब्रों में पड़े हुए हैं। क्या वो सताइश करते हैं? क्या वो दुआ करते हैं? क्या वो इबादत करते हैं? उनके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है। और टाइम एक ऐसी चीज है, 2021 साल गुजर गया है, अब ये कभी जिंदगी में वापस नहीं आने वाला। 2022 में गुजर जाएगा, 23 में गुजर जाएगा, इसी तरह आगे को वक्त है वो गुजरता जाएगा। वक्त को वापस लाना नामुमकिन काम है। इसलिए कलाम में लिखा है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। वक्त की कदर करें। नए साल के मौका पर आज उन लोगों के लिए मैसेज है जिन लोगों ने अभी तक तौबा नहीं की, सच्चे दिल से ईमान नहीं लाए और पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, वो अपने आप को तैयार करें। और कल इतवार है, कल इतवार की पहली इबादत 7 बजे है, दूसरी इबादत 10 बजे है। और जितने भी लोग निजात पाना चाहते हैं, नए सिर से पैदा होना चाहते हैं, आप कल दूसरी इबादत जो 10 बजे है उसमें आइए ताकि हम आपको पानी का बपतिस्मा दे सकें। और भी बहुत सारी बातें हैं, आज एक हवाला बस पढ़ेंगे क्योंकि लंबा मैसेज हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा इसको बयान नहीं करना चाहता। मेरे साथ बस एक हवाला पढ़ लें। इस्तिश्ना की किताब 11वें बाब की 12वीं आयत।
इस्तिस्ना की किताब 11वें बाब की 12वीं आयत। ये देख ले, इतना मेरा तजर्बा, मैंने ऐसे हाथ लगाया बाइबल को और ये हवाला आगे आ गया। हालेलुया। 11वें बाब की 12वीं आयत जी, लिखा है उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। अब मेरे पीछे आप बोलिए, हमारे पाकिस्तान पर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक खुदावंद हमारे खुदा की आंखें लगी रहती हैं। क्या करने के लिए? फल तलाश करने के लिए। हर फर्दे बशर पर उसकी आंखें लगी रहती हैं। लिखा उसकी 7 आंखें हैं। 7 का मतलब है कि वो काबिलियत का उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। पूरी दुनिया पर उसकी आंखें सैर करती है। वो सोता नहीं, वो ऊँगता नहीं, वो हमेशा हमें देखता रहता है, जानता रहता है। इसीलिए तो दाऊद कहता है, खुदाया तेरी रूह तो भला नस के इधर जावा, आसमान उत्ते चढ़ जावा तो उत्थे भी तू, जमीन के नीचे चला जाऊं तो वहां पर भी तू, समुद्रों पार जाओ उतरा तो उत्थे भी तू, हर जगह पर तू है। खुदा लामहदूद है। इसलिए उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते तो मैं वहां पर मौजूद होता हूं। वो लामहदूद और हर जगह पर मौजूद है। उसकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, वो कभी सोता नहीं। और 1 जनवरी से लेकर, यानी आज से लेकर महीने का जो आखिरी जो डेट होती है, तब तक खुदा की आंखें हम में से हर एक शख्स पर लगी रहती हैं। इसलिए वो हमें देख रहा होता है। हम कितनी दुआ कर रहे हैं, हम कितना मोबाइल देख रहे हैं, हम कितना कार्टून देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कितनी चुगलियां कर रहे हैं, कितनी बखीलियां कर रहे हैं, कितने गुनाह कर रहे हैं, कितनी नेकियां हम कर रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच कर कह रहे हैं। वो सब कुछ जो है वो देखता है, क्योंकि उसकी आंखें खुली किताब की मानद है और हमारी जिंदगी भी खुली किताब की मानद उसके सामने है। इसलिए हम उससे कोई भी चीज छुपा नहीं सकते। वो आखिरी रात हर एक शख्स की जिंदगी में आकर फल की तलाश करता है। जैसे कलाम में लिखा कि एक शख्स ने पाकिस्तान लगाया, उसने खाद डाली और उसने पानी दिया, गोडी की भाट लगाई। 3 साल से मालिक जो है हर साल फल की तलाश करने के लिए आता, लेकिन जब ना पाता तो बड़ा गमगीन होता, बड़ा दुखी होता, बड़ा परेशान होता और बागबान से कहता कि इसको काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे, इसको काट डाल। फिर वो आता दरमियान में और कहता कि 1 साल और इसको रहने दे, मैं इसके चुगलखाना खोलता हूँ, इसको खाद डालता हूँ, इसको पानी देता हूँ, इसके चुगलखार लगाता हूँ, अगर आएगा तो फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद इसको काट डालना। इसी तरह बाइबल कहती है अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है और जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता बाप उसे काट डालता है और लकड़ियां चुनने वाले आते हैं और जाकर उसे तनूर में झोंक देते हैं। इसी तरह जब 31 दिसंबर की रात को जब खुदा बाप जो है वो फल तलाश करने के लिए आता है लेकिन नहीं पाता, वो दुखी होता है, वो गमगीन होता है, परेशान होता है और उसको गुस्सा आता है, क्योंकि पुराने अलनामे में उसने लोगों को पानी से मारा, उसने आग से मारा और जो भी कोई नाफरमानी करता उसको मौके पर मौत हो जाती पुराने अलनामे में। लेकिन अब क्या है, अब यीशु अपना खून लेकर दरमियान में आ जाता है और कहता है बाप 1 साल और इसको रहने दे, अगर आइंदा को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद इसको काट डालना। क्या आपने अपनी जिंदगी को कल रात चेक किया? आप लोगों ने कल रात अपनी जिंदगी में अपने गिरेबान में झांक कर देखा किसी ने? मैंने देखा। पहले हमने टीम की सूरत में दुआ की, फिर मुझे क्योंकि नींद नहीं आ रही थी तो फिर मैंने पूरे टाइम नोट किया। मैंने कहा पूरे 12 बजे मैंने खुदावंद को अपनी जिंदगी में, अपने खानदान की जिंदगी में, अपनी कलीसिया की जिंदगी में मैंने वेलकम कहना है और मैंने दुआ की है और मैंने गुजरे साल के लिए शुक्रगुजारी की है और गुजरे साल में जो भी कमियां, कमजोरियां, गलतियां, खताएं हैं उनका हमने इकरार करना है। क्योंकि इंसान कमजोर है, इंसान उठता बैठता चलता फिरता बातों बातों में गलती खता कर जाता है, यह इंसान की फितरत में शामिल है, इसलिए उसका इकरार करना बहुत जरूरी है। और फिर नए साल में खुदा से नई पावर और नया इख्तियार और नई कुव्वत
और नया जोर और नई हिकमत खुदा से मांगकर खुदा के साथ चलने का फजल हमने मांगना है। और मैंने रात को ये सारी बातें खुदा के साथ की, पूरे 33 मिनट मैंने 12 बजे के बाद 12 से लेकर यानी 33 मिनट मैंने पूरे खुदा की हुजूरी में दुआ की, आप सबके लिए, अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने गांव के लिए, अपने चर्च के लिए, आप सबके लिए मैंने पूरे दिल से खुदा की हुजूरी में दुआ की, आपकी सरफराजी के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी खुशहाली के लिए, आपके वसाइल के लिए, आपके ज़राए के लिए खुदा से मैंने ये सारी दुआएं की हैं। और नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए जिनकी मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, उनके लिए मैंने सबके लिए मिलकर जो है वो दुआ की। क्या आपने कल रात ऐसा किया? मैंने कहा खुदा मैं अपना दिल, अपनी जिंदगी, अपना टाइम, मैं अपना सब कुछ मैं तुझे देता हूं क्योंकि तूने ही सब कुछ मुझे दिया। क्या आपने ऐसा कहा पूरे 12 बजे? कहीं तक कराड़े मार रहे हो नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमें इस साल में, आखिरी साल, ये जो हमने खुदा ने दिया हमें एक नया साल, उसमें हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। और कलाम में लिखा है कि कोई भी नए बैग को पुरानी बश्तों में नहीं करता। एक और इंजील के दरख्त की मिसाल देना चाहता हूँ। हरा भरा था, पत्ते बड़े हरे थे। सुबह सवेरे यीशु उसके शिगर जा रहे थे। यीशु ने देखा दरख्त बड़ा हरा है, मैं चाहता हूँ कुछ खाने के लिए लेता हूँ। लेकिन जब पास गया, तलाश की, ढूंढा, एक भी फल उसमें से नहीं मिला। और यीशु ने लानत की, आइंदा को तुझ पर कभी फल। फौरन वो दरख्त सूख गया। और यीशु ने क्या कहा? अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी, और जो डाली मुझ में कायम रहती वो बहुत सारा फल आती है, और जो मुझ में कायम नहीं रहती वो काट डाली जाती है, सूख जाती है। हर लिहाज से, माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर वो सूख जाती है। लेकिन अगर हमारा ताल्लुक उसके साथ है तो हम हरे भरे रहेंगे, सादब खजूर के दरख्त की मानद सब्ज और शादाब रहता है। 24 घंटे, 12 महीने, 365 दिन हमेशा वो खुश रहता है। क्या आपने अपने लिए खुशी मांगी? रूह के 9 फल मांगे, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, हिल्म, परहेजगारी, ईमानदारी, राष्ट्रवादी। क्या आपने ये सब कुछ कल रात खुदा से मांगा? जब 12 बजे तारीख बदली तो क्या आपने कहा खुदा मेरी जिंदगी को बदल दे, मेरा उठना बैठना बदल जाए, मेरा खाना पीना बदल जाए, मेरा सोना जागना बदल जाए, मेरा चलना फिरना बदल जाए, मेरा पहनना ओढ़ना सब कुछ बदल जाए? क्या आपने जोर देकर दुआ की है? बहुत सारे लोगों ने नहीं की। आज आपके पास टाइम है, आज आपके पास मौका है कि आप अपने आप को तब्दील करें। बस आखिरी बात करने वाला हूं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो नजर आता है, और आता कि नहीं? रिश्तेदार वेखण वास्ते आंदे ने, नाले पैसे देंदे ने, नाले जनाब मुंडे नूं या कुड़ी नूं चुक दे ने, नाले मुबारकबादां दे ने। ऐसे है ना? तो जब आप पैदा होते हैं तो आसमान पर खुशी मनाई जाती है। हालेलुया! खुदा लाखों फरिश्तों के साथ खुशी मनाता है एक शख्स के तौबा करने से, एक शख्स के नए सिरे से पैदा होने की वजह से। खुदा लाखों फरिश्तों के साथ खुशी मनाता है। और फिर जब कोई शख्स तब्दील होता है, लोग उस पर निगाह करते हैं, गौर करते हैं, ये पहले कैसा था, अब कैसा है। किसी ने कहा कि ईमानदार शख्स शीशे के घर में रहता है। शीशे में जो चीजें लगी होती है ना, वो सब नजर आती हैं, बड़ी खूबसूरत नजर आती है। तो इसलिए हम शीशे के घर में रहना शुरू हो जाते हैं। फिर लोग हमें देखते हैं कि कई लोग फिर आके मैंने लावे देते, भाई साहब फलाने बंदे ने तुसी बपतिस्मा दिता ते ओ हले शराब ते हले नहीं छड्डदा, सिगरटां ते हले नहीं छड्डदा। मैं आखिया मैं कदों नूं किहा सी मरे पे भी, हुण ओहदी मर्जी है नहीं छड्डण दिया, मैं तो दुआई कर सकना ना। और कई बहनों के अलामे मिलते हैं, जी भैन ने तुहाडे को बपतिस्मा लिया ते वो ते गालां हले भी कढदी। मैं कहती जे मेरा तो कसूर नहीं ना, बपतिस्मे ने कहा सी तुसीं गालां कढियो, इसमें तो अपना कसूर है। जब आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं तो फिर आपने हमेशा लिखा है मसीह ने तुमको आजाद रहने के लिए आजाद किया है, दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। अब लोग हम पर नजर करते हैं, लोग हमें पढ़ते हैं, और पौलुस कहता है हम मसीह का जिंदा खाते हैं। जब खाता आता था ना तो लोग उसको गौर से पढ़ते थे, कई बार पढ़ते थे। और आज भी हम मसीह के जिंदा खत हैं, लोग हमें पढ़ते हैं। इसलिए हमें एहतियात के साथ अपनी जिंदगी को गुजारने की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।